Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. I welcome you all in today's online session regarding the course of power electronics. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the verse of Holy Quran. So today the session is about power electronics. We further first discussed about the introduction of power electronics, that what is the power electronics. The lecture which I am going to start from the book Ashfaq Ahmed for the power electronics, and this book is very useful and helpful for many of the concept regarding power electronics, and this is the self-explanatory book regarding the power electronics. Most of the things you will understand by yourself. Absolutely, I am covering all the kind of basic and advanced topics regarding the power electronics course, but this is the important aspect of power electronics in Ashfaq Ahmed. So basically, we start the session with the introduction. Application of solid state electronics in the power electronics field is steadily increasing, and the power electronics term has been initialized from 1960s by silicon control rectifier, which is known as the control rectifiers. So basically, power electronics is that electronics of power which is controlled by the solid state electronic devices, and the rectification process by a control method of SCRs. So uh, power electronics particularly, you can see in this power triangle of diagram, which known as the power for electronics which need to be controlled. So the term is evaluated for that kind of electronics which is controlled by the semiconductor materials. That is known as power electronics. That power should be controlled by the semiconductor devices. Uh, Regarding the session, if you have any kind of question or query, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind. The why the power tonics is commonly important. We all know that controllability in electronic devices is the essential aspect, and without the controllability, electronics or devices is useless for human being. So it's a kind of requirement in every human is that the devices should be controlled by the human, and specifically without the human intervention, there should be the smart controllability in the device, that some kind of certain decisions should be taken by the device, that either should this device be on or off. अब मैं थोड़ा इसको उर्दू में बताता हूँ, मेजॉरिटी डिमांड करती है कि इसको उर्दू में भी एक्सप्लेन की जाए। पावर टॉनिक्स वो फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कि कंट्रोल की जानी चाहिए ऐसी डिवाइसेस के ज़रिए से जो कि उसमें एम्बेड होते हैं सिस्टम्स। मिसाल के तौर पे मैं इस कंट्रोलेबिलिटी को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर मैं अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे एक चार्जर की नीड है। चार्जर के अंदर दो काम होते हैं। एक तो जो अप्लायंसेस से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो 220 वोल्ट्स होते हैं, सिंगल फेज। उसे कम करने होंगे क्योंकि 220 वोल्ट के ऊपर आपका मोबाइल चार्ज डायरेक्टली नहीं हो सकता। मोबाइल चार्ज होता है 5 वोल्ट डीसी के ऊपर। So you need a converter which going to convert essentials from AC to 20 volt to DC, as well as step down these kind of voltages from 220 to some kind of minimize level of voltages। कम से कम इसको कम करना ज़रूरी होता है, और कम करने के बाद इसको रेक्टिफायर करते हैं, और ये 220 वोल्ट एसी से कम होने के बाद, रेक्टिफाई होने के बाद, फिल्टर होने के बाद आपको अपनी उस पिन के ऊपर 5 वोल्ट डीसी मिलते हैं, जिससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर पाते हैं। ये एक बेसिक एसेंशियल टेक्निक है कंट्रोल करने की पावर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी के ज़रिए से। इसमें मेनली सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस अपना रोल प्ले करती है, रोल अदा करती है। बगैर सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस के डायोड
और स्विचिंग एप्लीकेशंस, ट्रांजिस्टर्स ये काम नहीं कर सकते। क्यों मेनली सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस बनती हैं जो कि मेनली टाइप ऑफ सिलिकॉन सबस्ट्रेट के ज़रिए से मार्केट में इन है, और हम सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस को अपनी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल भी करते हैं। फर्दर अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने इस डायग्राम के थ्रू एक बैटरी के ज़रिए से हमने एक लोड को कंट्रोल किया हुआ है, और इसके वोल्टेजेस को हम एक पोटेंशियोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस के ज़रिए से कंट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन ये कंट्रोलेबिलिटी मैनुअल है, मुझे ये ह्यूमन इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। ह्यूमन इंटरवीन के बाद, यानी अपने हाथों के ज़रिए से ही मैं इसके पोटेंशियोमीटर को कंट्रोल करवाते हुए लोड के वोल्टेजेस को आ, इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो ये एक टेक्निक ज़रूर है पावर को कंट्रोल करने की, इन सेंस ऑफ वोल्टेजेस, बट ह्यूमन इंटरवीन इसमें ज़्यादा है। फर्दर इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं, ये अशफाक अहमद साहब की बुक के अंदर, वोल्टेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर फुलफिल फर्दर होती हैं। सो पावर टॉनिक्स के हवाले से हम इस बुक में अभी जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके हवाले से जो डिटेल और जो सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस हमारी इस्तेमाल होंगी, उसके हवाले से भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारी जो पावर सेमीकंडक्टिव स्विचेस होते हैं, सेमीकंडक्टिव स्विचेस कौन से होते हैं? सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस, पहले तो हम समझ लेते हैं। सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि डोपिंग की मदद से एक प्योर सब्सटेंस को हम सिलिकॉन के साथ बम्बार्डमेंट के जरिए से कंबाइन करके उसकी डोपिंग के जरिए से एक सबस्ट्रेट बनाते हैं, जिससे दो सबस्ट्रेट बनते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हम एक सेमीकंडक्टिव डिवाइस बनाते हैं। सेमीकंडक्टिव क्यों? सेमी से मुराद आधा कंडक्टर कोई और सा और आधा कंडक्टर कोई और सा, इसको मिलाकर हम बनाते हैं, और ये इनको मिला के बनाने की टेक्निक को डोपिंग कहा जाता है। उससे हमारी एक सिलिकॉन बेस्ड डिवाइस तैयार होती है जो कि कहलाती है डायोड। तो सेमीकंडक्टर से मुराद हमारी वो डिवाइसेस जो कि दो अलग अलग कंडक्टर के जरिए से तैयार की जाती है। इससे कंडक्टिविटी में इजाफा भी होता है, और वो फास्ट स्विचिंग एप्लीकेशंस के अंदर एप्लीकेबल भी होती हैं, इस्तेमाल भी होती हैं। Power electronics switches are the most important element in the power electronic circuitry. The major types of semiconductor devices is used as a switch. एंड अगर आप आम स्विचेस की बात करें तो उनका स्विचेस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत मैटर करता है। स्विचिंग से मुराद ऑन से ऑफ से ऑन, ऑन से ऑफ से ऑन, ये कंटिन्यूअसली 1 सेकंड के अंदर मिलियन टाइम्स ये स्विचिंग होती है, ऑन से ऑफ से ऑन। अगर आम कंडक्टर के जरिए से वो स्विच तैयार किए जाएंगे तो उनमें हीटिंग लॉसेस, स्विचिंग लॉसेस के नतीजे में वो कंडक्टर जिससे वो स्विच तैयार हुआ है वो खराब हो सकता है। दैट्स अ रीजन कि हम एक ऐसा स्विच बनाते हैं सेमीकंडक्टिव डिवाइस के जरिए से जो कि मल्टीपल स्विचिंग के नतीजे में खराब ना हो। दैट्स अ रीजन कि हम इन स्विचेस को तैयार करते हैं सेमीकंडक्टिव डिवाइसेस के जरिए से। और इनमें जो स्विचेस तैयार किए जाते हैं जो स्विच के तौर पे काम करते हैं, वो डिवाइसेस खास तौर पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो पावर सेमीकंडक्टिव स्विचेस कहलाते हैं, उनमें एक डायोड है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट इज द मॉसफेट, एंड द आईजीबीटी, मोस्टली commonly used for high switching applications, which is the IGBT, insulated gate bipolar transistor. SCR, more specifically used for fast switching application as well, and as well as the control rectification purpose, which is known as SCR, silicon control rectifier. Other one is trike as well as the dike. GTOs, gate turn on thyristors, and MOS control thyristors, that means the metal oxide semiconductor devices.
So these are the devices which I'm going to discuss with you guys in further incoming lectures. So this is all about today's session regarding power electronics. Hope you understand and aware these things. Uh, we will continue